between two kinds of people. Look here, poet is here. Look, try to understand the fact of the poem, The Wind. As I told you, the poet is trying to request and other side he is making aware. Poet is explaining about the true society of our neighboring. We know that in our society always we have seen the strong and dominated kind of people. Those who have dominated the areas, those who are strong enough, they have capacity to crush the weak ones in our society. They always try to dominate, and the story of the domination is only be described by a strong person. So if you are strong, you are showing your proud, you are telling to everyone, you are showing your strength unnecessarily on weak person. This poem is indicating and making contrast between the strong and weak person. If a strong person is making friendship to a strong person, there will be no effect. And people will only watch what is happening. But if the strong person is making friend to a weak person, people will amazed. People will be amazed. They will be surprised that what is the reason behind it. If you are having 10 rupees in your pocket and other side a person, a student who is not, who has no any money in his pocket, and you are telling that he or she is my friend, then people will think what kind of friendship it is. As a human being, it comes in our mind, it is not friendship. It is not kind of a friendship, because this is uneven relationship. And if the relationship is uneven, it is not matching, it is not directly related to each other, their emotions will not be shared. If you are in great trouble, you know that I have been working in the field right from the morning to evening. That's why I earn 500 or 200 my wages. I took the wages, I took the money from the landlord, I took the money from my owner and purchased some necessary items, necessary things for my survival. I am thinking about my 500 rupees. That 500 rupees is only fit for my family to survive for the whole day. And the other side, the owner who is giving me 500, the 500 is the smallest unit for him or her. So what is the relationship between you and the owner? You and your friend who is helping you by giving only 500 or 100 or 10 rupees. If your friend is giving 1 rupees every day, if your friend is not giving money, okay, no problem. Your friend is giving ice cream every day. Your friend is giving every day a chocolate.
In return, you are not giving anything. Then your habit is growing. Your habit is growing. What kind of habit? Greedy. The habit is greedy. Greediness, lalach. One day, your friend was absent. He did not come. Or maybe she did not come. And now your eyes are searching your friend. Because you have made your habit that I want a chocolate every day. You searched, you didn't find. As a result, you became unhappy and told to yourself, "Aaj ka din acha nahi tha." Why? Because I was greedy, and that greediness made me what? Habit. Yes. Habit. To please. गिड़गिड़ाना, रिक्वेस्ट करना, अब तो भूख लगी है या मुझे मेरी डिजायर इतनी बढ़ चुकी है, तो मेरा क्या हो गया, ये हैबिट अब एडिक्शन में बदल गया। ये मेरा क्या हो गया? एडिक्शन। एंड एडिक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वन। I cannot live without that. You might have seen drunkards. You might have seen druggists. You might have seen people, those who are engulfed with these bad habits. If they will not get that day reason, anything can be happening. Maybe he or she does not have money. That's why she could not buy that. Then he will snatch, he will cheat, he will steal things. Maybe if he could not get or she could not get stealing anything, she or he could sell anything from their houses or his or her houses. घर का भी कोई सामान उठा कर बेच देगा कि वो एडिक्टेड है। एंड दैट एडिक्शन विल मेक द पर्सन डिप्रेस। उस इंसान को क्या करेगा? डिप्रेस कर देगा। और डिप्रेशन वायलेंट बना देगा। डिप्रेशन विल मेक यू वायलेंट। यू विल नॉट बी हैप्पी। Always you will be in thinking that how should I get? How would I get 50 rupees, 100 rupees or that much of amount to buy my addicted things? I'm giving this example to addiction. Those who are caught in addiction. So that life is required only what? Satisfaction. If life would be happy only because if you are satisfied. How will you satisfy? How will you be satisfied? You will be satisfied if your needs are very calculated. Your needs are very, you can say, in your hands. Your desire is in your mind, and your desire should not reach at utmost level. If your desire is reaching at utmost level, obviously you are being addicted, or you are always dreaming that I want that, I want this, I want that, I want to be the best one, I want to be this, I want to get this. In order to get that one, you will start making yourself strong. And if you are strong and not getting any chance to steal anything, you will start robbing, you will start bullying, you will start pushing someone, you will start beating someone, you will start snatching someone.
because you are strong and it is your character to crush the weak people. अब जब आप बहुत मजबूत हो चुके हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं, तो आपको पता है मुझे कुछ नहीं करना. आई डोंट हैव टू रिक्वेस्ट. नो प्रॉब्लम, यू आर माई फ्रेंड एंड यू आर गिविंग मी एवरी डे चॉकलेट. टुडे यू आर मेकिंग सेइंग दैट ओके आज चॉकलेट तो नहीं खिला पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है. पैसे नहीं है, ये कौन सी बात है? पैसे लाने पड़ेंगे. मांग किसी से. तुमने मुझे रोज खिलाने की आदत क्यों डाली? रोज क्यों मुझे चॉकलेट दिया? अब वो उसे फोर्स करेगा मेंटली, इमोशनली, लास्ट में स्ट्रांगली. बात बंद कर देंगे, गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे इमोशनली. उसके बाद उसका सामान उठाकर फेंक देंगे. अब वायलेंट बन गए तो सोचेगा इससे दोस्ती रखने में ही भलाई है. कोई भी खुद से ज्यादा स्ट्रांग उससे दुश्मनी कौन लेना चाहेगा? उससे दोस्ती ही रख. एक चॉकलेट ही से क्या फर्क पड़ने वाला है? शांति से तो ये बैठने देगा, शांति से घूमने देगा. चल एक चॉकलेट डोनेट करो. तो वो कुछ नहीं, घर से एक सोच के चलेगा कि मुझे एक चॉकलेट एक्स्ट्रा का पैसा लेके चलना है. चलो चॉकलेट छोड़ दो, कुछ लोग लंच शेयर करते हैं और कुछ लोगों की आदत होती है लंच कभी लेके नहीं आए. तो लंच शेयर करने की भी आदत हो गई है. तू आज मेरा रोटी नहीं लेके आया, तू मत खा. ऐसे होता है, क्लास में भी होता होगा. हर क्लास में, हर जगह, हमारे टाइम में भी होता था. ऐसा नहीं हर जगह, हर टाइम में होता है. बिकॉज जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द टू काइंड ऑफ पीपल. द strong people have desire and weak people are suppressed. वो तो बेचारा suppressed है, दबा हुआ. उसके पास कोई डिजायर नहीं है. उसकी बस यही डिजायर है कि आज का दिन गुजर जाए शांति से. आज कोई डांटे उठे नहीं, कोई मारे मत, कोई मुझे परेशान ना करे, कुछ भी मत करे और बोल थैंक यू बोल करके गॉड को घर चला जाता है. फिर अर्ली मॉर्निंग उठता है, बोलता है आज सब कुछ ठीक ही होगा. रोज की वो प्लानिंग करता है. स्ट्रांग जो पीपल होते हैं वो रोज की प्लानिंग नहीं करते. वो जानते कोई फर्क नहीं पड़ रहा. मेरे पास नहीं है तो क्या होगा, औरों के पास है ना, काम चल जाता है. बिकॉज दे ऑलवेज इमिटेट. वो खुद को दिखाते रहते हैं कि देख मेरे पास बहुत पावर है, मेरे पास बहुत ये है वो है. झूठ की बात दिखाएंगे ताकि सामने वाला घबराया हुआ रहे. दिस इज कॉल्ड सप्रेशन. ये सप्रेस कर रहे हैं. तो द पोएट इज ट्राइंग टू से दैट आवर फ्रेंडशिप इज नॉट गुड विद द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. आवर फ्रेंडशिप इज नॉट गुड विद द वेल्दी वन who is actually 10 times or 100 times more than us. There is no friendship. ऐसे फ्रेंडशिप नहीं होता. ऐसे फ्रेंडशिप नहीं होता. ऐसे फ्रेंडशिप होता है. If you are watching every time this side, this is not friendship. You are not comfortable. You are comfortable only watching this side. हमारे लेवल का इंसान है. एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट होगा तो उसे पढ़े लिखे स्टूडेंट से दोस्ती होगी. अगर उसकी दोस्ती बहुत ही अलग किस्म के लोगों से दोस्ती होने लगी तो उसका कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर पास आउट हो जाएगा उधर. अभी एक बात तुमको बताते हैं. तुम्हारी दोस्ती अगर हो गई किसी मिलेनियर से तो उसकी हैबिट तुम्हारी हैबिट मैच नहीं करती. अब क्या करोगे? अपनी हैबिट को इसके हैबिट से मैच कराना शुरू करोगे. अगर ये बहुत महंगे खर्च कर रहा है, बहुत अच्छे ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है तो तुम इसके पीछे पीछे घूमते रहो, दिखाई देते रहो. और जब ये नहीं होगा तो अब तुम्हारे पास जो और भी दोस्त हैं जो तुम्हारे लेवल के हैं उनको तुम झूठ मूठ कर क्या दिखाओगे कि मैं तो हूं ना इतना बड़ा हूं तुम्हारे सामने. झूठ मूठ का मेरी हाइट तुम्हारे बराबर नहीं है, मैं वेल्दी, मेरे जो शौक हैं वो तुम्हारे जैसे नहीं है. तुम कहेगा कि चॉकलेट खाना नहीं खाएंगे, तुमको खिलाएंगे और उस खिलाने के लिए किसी भी दुकानदार के पास जाकर तो उधार में खाएंगे. ऐसे तो नहीं है. जबरदस्ती किसी से छीन लेंगे. तुम क्या जानते हो, तू नहीं खाएगा, इसको क्या, तुम नहीं खा, तुम खा.
अपनी झूठी शान दिखाना। तो ये सोसाइटी में दो तरह के ऐसे लोग होते हैं। पोएट इन लोगों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि पोएट इज रिक्वेस्टिंग, किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं? विंड को। विंड इज पावरफुल, विंड इज पावरफुल एंड वी आर वेरी वीक। So our surroundings like our things, our vehicles, our homes, our own things, what we keep, जो हम पास अपने रखते हैं, घर है, खिड़कियां लगाए हैं कंफर्टेबल रहने के लिए, पंखे लगा रखे हैं कंफर्टेबल रहने के लिए, अपने घर के आगे पेड़ लगा रखे हैं कंफर्टेबल रहने के लिए। अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से, प्लीज कम। गेट खोल के रखे हैं, खिड़की खोल के रखे, क्यों बताइए? सामने एग्जाम्पल है। यू आर रिक्वेस्टिंग विंड, प्लीज ब्लो, प्लीज कम, बट सॉफ्टली। अभी तेज हवा इतनी तेज बहनी शुरू हो जाए, तुम क्या करोगे? बोले खुला रहने दे, तुरंत बंद करने जाएगा, क्योंकि अब ये वायलेंट हो चुका है। इसकी दोस्ती अच्छी नहीं है और इसकी दुश्मनी भी अच्छी नहीं। दोस्ती होगी तो दुश्मनी होगी, तो ना दोस्ती और ना दुश्मनी, मिडिल ऑर्डर में रहो। तो ये बीच बीच के लोग होते हैं। तो पोएट इज ट्राइंग टू से दैट, विंड को कहता है कि प्लीज कम बट सॉफ्टली, डोंट स्कैटर द पेपर आई हैव केप्ट हियर ऑन द टेबल। I was not thinking, I was not just making my plan that if I just doing something at that corner, the wind blow and all the papers will scatter down on the floor. ये मैंने सोचा ही नहीं है। तो क्या हर टाइम मुझे पेपर के ऊपर हैवी वेट रखना होगा? ऐसा सोच के नहीं रखते। कभी अपने घर के अलमीरा के पीछे एक हुक लगा करके दीवार से लगा कर रखेंगे कि कभी गिर न जाए। ये फैन मूव कर रहा है, ये फैन को और भी 2-3 जंजीर लगा करके रखेंगे कि अगर वो नीचे से टूट गया तो गिर जाएगा। ऐसा करके रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे। लेकिन इतना में इसको इसी स्पीड में चलाएंगे, ये मुझे अच्छा लगे। अब ये अगर बहुत स्पीड में चलेगा तो आई स्टार्टेड सफोकेटिंग, अब तो मुझे सफोकेट होने लगेगा। मुझे हवा चाहिए, लेकिन इतनी हवा मुंह पे नहीं चाहिए जिसे सांस लेना मुश्किल होता है। तो पोएट इज ट्राइंग टू से, विंड को कहता है कि कम बट सॉफ्टली, डोंट स्कैटर, प्लीज आओ, लेकिन मेरे अलमीरा में रखे हुए पेपर्स को, बुक्स को गिराओ मत। डोंट स्कैटर द पेपर्स एंड डोंट स्टैटर द विंडोज पैन इवन ऑल्सो। खिड़कियों को भी ज्यादा खड़खड़ाओ मत, आवाज मत करो। बिकॉज वी हैव लर्न्ड इट दैट योर फ्रेंडशिप इज नाइदर गुड नॉर बैड। ना तुम्हारी दोस्ती अच्छी है और ना बुरी है। दैट्स व्हाई वी से विंड गॉड, विंड गॉड बोलते हैं विंड गॉड। क्यों? क्योंकि उससे हम डर रहे हैं। भाई तुम तो आओगे और वायलेंट हो जाओगे। देखो मैंने मना किया था कि प्लीज डोंट कम सो स्ट्रांगली इनटू माय हाउस। यू ब्रोक द विंडो पैनल, यू ब्रोक द चेयर, you broke the things which was kept, and now you brought with you what? Rain. हवा तेज बहेगी, गुस्से में बहेगी तो अपने साथ लेके क्या आ गई? बारिश लेके आ गई। And that rain was smuggled with the dust. Then what will happen? The dust will messed everywhere and it looked like a mud. That's why poet is requesting, come but softly and don't try to break the things, because it breaks the heart. A person who has made his house by only his effort, his strong desire, his only wish that one day I want a good house.
and I will live peacefully in that house. But we forget that there are many enemies who could destroy our peacefulness. The poet is trying to suggest. अगला वर्ड आएगा द रिक्वेस्ट करने के बाद सजेस्ट करना. क्या सजेस्ट करना? We should try to make our windows so firm. मजबूत बनाओ खिड़कियों को, दरवाजों को मजबूत बनाओ. अपने सेल्फ को बंद करके रखो, खुद को मजबूत रखो, ताकि हम उस विंड से लड़ सके. अपने दरवाजों को बंद कर सके और जितना भी टकराना है टकराओ. अब उससे बड़ी विंड आएगी तभी मुझे परेशान करने वाली. यू माइट हैव सीन ए कैंडल. कैंडल रिक्वायर्स एयर. कैंडल रिक्वायर्स एयर टू बर्न. उसको भी जलने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए. लेकिन तेज हवा उसको भी बुझा देगी, और हल्की हवा चलेगी तो और तेज जलेगा, और हवा बिल्कुल हटा देंगे तो बुझ जाएगा. So we need air. We know that we need air, but we do not want that much of air so that our whole life gets disturbed. Okay? चलिए, open your book now.